مہراب پور ضلع نوشہر و فیروز کا یہ شہر نیشنل ہائی وے کے مشرق میں 10 کلومیٹر کے فاصلے پر لاہور سے کراچی والی مین ریلوے لائن پر واقع ہے۔ اگرچہ اس شہر کی تاریخ سے متعلق مختلف رائے ہیں، کچھ مورخ لکھتے ہیں کہ ایک مہراب ملا نامی سردار نے یہ گاؤں آباد کیا جو اس کے نام سے منسوب ہو کر مہراب پور کے نام سے مشہور ہوا، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ مہراب خان جتوئی جو کلوڑا حکومت میں وزیر تھا، یہ شہر اس کے نام پر ہے۔ قیام پاکستان سے قبل یہاں کی تجارت پر ہندو بنیاں حاوی تھا، مگر پاکستان بننے کے بعد تجارت تمام کی تمام مسلمانوں کے پاس ہے۔ شہر کا مشرقی حصہ نیو ٹاؤن کہلاتا ہے۔ یہ علاقہ ہجرت کر کے آنے والوں نے آباد کیا۔ شروع میں یہ ایک کچی بستی تھی، مگر آج ایک خوبصورت شہر کا منظر پیش کرتا ہے۔ شروع کا مہراب پور پاکستان بننے کے بعد ویران سا ہوتا چلا گیا تھا، مگر اس کے بعد ریلوے روڈ، ٹھری روڈ، عمر فاروق کلاتھ مارکیٹ، شاہی بازار اور ہالانی روڈ پر دکانوں کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ آج یہ علاقے تجارت کے مین مرکز سمجھے جاتے ہیں۔ مہراب پور کی غلہ منڈی اور فرنیچر مارکیٹ ملک بھر میں مشہور ہے۔ اس شہر کا گڑ اور فرنیچر ملک کے باہر تک جاتا ہے۔ فرنیچر کی چھوٹی چھوٹی دکانوں سے لے کر بڑے بڑے شو روم شہر کی نمایاں پہچان ہے۔ یہاں کی فرنیچر مارکیٹ میں مرحوم محمد شفیع مغل کو استاد کی حیثیت حاصل ہے۔ دور جدید میں بھی بہت سے ڈیزائن انہی کے متعارف کرائے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا کرے۔ شہری امور کو چلانے کے لیے سن 1962 میں ٹاؤن کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1962 سے اب تک الحاج شوکت علی خان لودھی، عبدالغفور مغل اور فاروق احمد خان لودھی چیئرمین، جبکہ منور بیگ مغل، میر مولائی، عبدالوہاب میمن، یوسی ناظم منتخب ہو چکے ہیں۔ شہر کو تیزی سے بڑھتا ہوا دیکھ کر سندھ گورنمنٹ نے سن 2005 میں اس شہر کو تالکے کا درجہ دیا، جس کے پہلے تالکہ ناظم سید ابرار علی شاہ، جو کہ آج کل ہمارے علاقے کے MNA بھی ہیں، منتخب ہوئے۔ تعلیمی میدان میں بھی یہ شہر پیچھے نہیں۔ سن 2004 میں بوائز ڈگری کالج کی کمی بھی پوری کر دی گئی۔ یہاں کی سیاسی و سماجی شخصیات کی کاوشوں سے مونو ٹیکنیکل کالج اور گرلز ڈگری کالج کا قیام بھی عمل میں آ چکا ہے۔ مہراب پور کی سب سے قدیم علمی درسگاہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کی بلڈنگ کسی وقت سندھ کی خوبصورت ترین عمارتوں میں شمار کی جاتی تھی، مگر آج محکمہ تعلیم کے اعلیٰ حکام کی عدم توجہ کے سبب اپنی خوبصورتی کھوتی جا رہی ہے۔ کوئی وقت تھا جب اسکول کے چاروں اطراف تناور ہرے بھرے درخت تھے، عالی شان پارک تھا، اس کے علاوہ ایک بہت بڑا گراؤنڈ۔ شہر میں ہونے والے بڑے بڑے جلسے اور ٹورنامنٹ یہیں پر منعقد کیے جاتے تھے۔
स्कूल की इमारत में ज़िले हुकूमत की जानिब से एक लाइब्रेरी कायम की गई। शहरियों ने इसे बहुत सराहा कि चलो मुताले के लिए जगह तो मैसर आई, मगर शहरियों की उम्मीदों पर उस वक्त ओस पड़ गई जब इस बिल्डिंग में सरकारी दफातर कायम कर दिए गए। स्कूल की बिल्डिंग मरम्मत के काबिल है। इस दरसगाह से हज़ारों की तादाद में फारिग होने वाले तलबा हैं। कई तो बड़े बड़े सरकारी ओहदों पर फायज हैं, मगर उन्होंने भी कभी मुड़कर इस दरसगाह की तरफ नहीं देखा। दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मुहब्बत करना। तलबा को मजहबी और दीनी तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए यहाँ कई एक बड़े मदरसे हैं। मौलवी अंस का मदरसा रेलवे फाटक के नज़दीक, सैयद अकबर अली शाह वाला मदरसा कोटली कबीर रोड पर कारी इस्लामुद्दीन वाला मदरसा और हलानी रोड पर वाक़े मदरसा मदीनातुल उलूम काबिल ज़िक्र हैं। मेहरापुर की सबसे बड़ी दीनी दरसगाह जामिया अरबिया मदीनातुल उलूम का संगे बुनियाद 1979 में रखा गया। इस दीनी दरसगाह का बाकायदा इफ्तिताह एक साल बाद 1980 में हुआ। रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से अब तक बेशुमार तलबा दर्जा हिफ्ज़ में वफ़ाकुल मदारस की सनद हासिल कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दरस निज़ामी तकरीबन यहाँ पर मुकम्मल होता है, वरना दर्जा मौक़ूफ़ तक हर साल यहाँ तालीम होती है। दर्जा नाज़रा भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अंदाज में है, चलता है। दर्जा हिफ्ज़ मुकम्मल यहाँ होता है। और इसके अलावा एक हमारा शोबा और है जिसको हम दर्जा क़िरदान का शोबा कहते हैं। मदरसे की पुरानी इमारत के खस्ता हाली के सबब नई बिल्डिंग का इफ्तिताह 1999 में मुल्क के नामवर आलमे दीन मुफ्ती रफ़ी उस्मानी के दस्ते मुबारक से रखा गया। इस दरसगाह में कमोबेश 300 तलबा दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। शहर के अलावा बैरून शहर से भी तलबा की एक बड़ी तादाद ज़ेरे तालीम है। बैरून शहर के तलबा के लिए रिहाइश, इलाज व मुआलजा, नाश्ता, 2 वक्त का खाना, कपड़े धोने के साबुन के अलावा इनकी दीगर ज़रूरियात का ख्याल भी रखा जा रहा है। मदरसा मदीनातुल उलूम का महीने का खर्च गंदुम के अलावा तकरीबन 6 लाख रुपए है। सारा खर्च मुखय्यर हजरात और आप लोगों की मदद से ही पूरा किया जाता है। हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर मिलने वाली कुर्बानी की खालों से भी काफ़ी मदद मिलती है। शहर के अतराफ में न्यू टाउन में पीर सखी सुल्तान, रेलवे स्टेशन के नज़दीक पीर शेर शाह और शहर के शुमाली हिस्से में पीर मुरीद अली शाह का मज़ार है। पीर मुरीद अली शाह का उर्स 27 ज़ीक़द को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें मुल्क भर से हज़ारों की तादाद में मुरीद और अकीदतमंद शरीक होते हैं। दीन इस्लाम के पैरोकारों का ये शहर मस्जिदों से भरा पड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
उमर फारूक किलाथ मार्केट में मदीना मस्जिद, हलानी रोड पर थाने वाली मुस्तफ़ा मस्जिद, गौसिया मस्जिद, ठरी रोड रेलवे फाटक के नज़दीक नूर मस्जिद, न्यू टाउन में तूड़ी वाली मदनी मस्जिद, मोहम्मदी मस्जिद और जामिया एक मीनारा मस्जिद। न्यू टाउन की ये मस्जिद अहले इलाका और मुखय्यर हजरात के ताउन से नए सिरे से तामीर की जा रही है। महकमा औकाफ के ज़ेरे इंतज़ाम शहर की मरकज़ी जामिया मस्जिद के अलावा और दीगर बहुत सी मसाजिद शहरियों का मज़हब से लगावट का मुंह बोलता सबूत हैं। पाकिस्तान बनने के कुछ अरसा बाद मेहरापुर के शहरियों और रेलवे रोड पर कायम गल्ला मंडी के ताजरों ने रेलवे रोड और ठरी रोड के दरमियान जगह खरीदकर एक मस्जिद का संगे बुनियाद रखा, जिसे आज मरकज़ी जामिया मस्जिद के नाम से पुकारा जाता है। हय्या लस्सलाह की सदा बुलंद करने वाली ये मस्जिद अरसा गुजरने के बावजूद आज भी अपनी मरकज़ी हैसियत कायम किए हुए है। इब्तदाई दौर में इस मस्जिद में खतीब के फ़राइज़ मर्दान के पठान मौलवी अज़ीमुल्लाह अंजाम देते रहे, जो जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में 2 ईदें करने के तनाज़े पर मस्जिद छोड़कर वापस मर्दान चले गए। मस्जिद में दरसे कुरान का सिलसिला भी शुरू किया गया। इब्तिदा में बाबा अब्दुल सत्तार वट्टू और हाफिज़ खुर्शीद वट्टू ने बच्चों को दीनी तालीम दी। मौज़िन और खादम की ड्यूटी मुश्ताक बिजली वाले के वालिद अब्दुल लतीफ़ देते रहे। हाफिज़ रहमदीन मरहूम भी यहाँ इमाम रह चुके हैं, मगर महकमा औकाफ में आने के बाद हाफिज़ रहमदीन गौसिया मस्जिद में खतीब मुकर्रर हो गए। मरहूम अल्लाह दित्ता मुग़ल काफ़ी अरसे तक यहाँ के सेक्रेटरी रहे। मौज़न सैयद ज़ैनुल आबदीन शाह मरहूम इसके अलावा सूफ़ी मोहम्मद सदीक वट्टू की वाबस्तगी देखभाल के हवाले से काफ़ी अरसा तक रही। महकमा औकाफ में आने के फ़ौरन बाद बरेलवी और देवबंदी मसलक के दरमियान इमामत की वजह से तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया था, मगर फिर मशावरत के बाद खतीब देवबंदी मसलक का मुकर्रर किया गया। कहना पड़ता है कि मस्जिद की रेलवे रोड और ठरी रोड पर तकरीबन 35 दुकानें और महकमा औकाफ की सरपरस्ती के बावजूद मस्जिद का वो ख्याल नहीं रखा गया जो इसका तकाजा बनता है। मेहरापुर के जिना चौक को मेन हैसियत हासिल है। यहाँ से एक सड़क हालानी, दूसरी ठरी मीरवा, इसके अलावा एक रोड रेलवे स्टेशन और एक उमर फारूक किलाथ मार्केट को जाता है। चौक से चंद कदम के फासले पर एक रास्ता पुराने और नए शाही बाज़ार को निकलता है। शहर में किसी भी मसले पर निकलने वाले जुलूस का इख्तिताम इसी चौक पर धरने की सूरत में होता है। मुकर्ररीन यहीं पर खिताब करते हैं और चौक का नाम अपने कायदीन के नाम पर रख कर चले जाते हैं। इसीलिए इसे हैदर बख्श चितोई चौक, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो चौक, अली पीसीओ चौक, मुल्ला उमर चौक, जिना चौक के अलावा और भी कई नामों से पुकारा और लिखा जाता है।
मगर बदकिस्मती से अभी तक मुतफ़िक़ा तौर पर कोई भी नाम तजवीज़ नहीं किया गया। शुरू में यहाँ इतना रश नहीं था, मगर अब रश की वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है। इस चौक पर सब्ज़ी और फ्रूट की रेहड़ियाँ, मछली मार्केट, गोश्त मार्केट भी यहीं पर शिफ्ट हो चुकी है। चौक पर जहां आज बैंक अल हबीब वाक़े है, इससे कबल यहां अलाइड बैंक था। तकरीबन 45 साल पहले मेहराबपुर की तफरीह का मरकज़ निशात सिनेमा भी यहीं पर था, जिसने अपने दौर में लाहौर और कराची के साथ कई फिल्में नुमाइश के लिए पेश की। सिनेमा से चंद कदम आगे शाही बाज़ार के शुरू में सेठ मोहम्मद दीन की आड़त की दुकान हुआ करती थी, जिसके आगे काफ़ी बड़ा मैदान था, जहां सन 70 और 77 के इलेक्शन के दिनों में मुल्क के मरकज़ी सियासी लीडर खिताब कर चुके हैं। यहीं पर अहले सुन्नत के मसलक की मुस्तफ़ा मस्जिद थाने वाली वाक़े है, जिसका संगे बुनियाद 1978 में मुल्क के बड़े मजहबी रहनुमा मौलाना शाह अहमद नूरानी के दस्ते मुबारक से रखा गया। लोधी चौक मेहराबपुर का ये बड़ा चौक सियासी और समाजी रहनुमा फारूक अहमद खान लोधी की रिहाइश गाह के करीब है। इसे शहरी मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। कुछ लोग इसे लोधी चौक और कुछ हैदर बख्श नुनारी चौक कहते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद इस चौक को मोहतरमा के नाम से भी मंसूब किया गया। यहाँ से एक सड़क मला मोहल्ले से होती हुई कोटरी कबीर को जाती है, दूसरी दहलानी से होती हुई हालानी जाकर कौमी शाहराह से जा मिलती है, जबकि एक रोड रेलवे स्टेशन और ठरी मीरवा की तरफ जाता है। इस चौक से चंद कदम के फासले पर शहर का बस स्टैंड है। इसी तरह एक रास्ता रेलवे फाटक क्रॉस करके डिग्री कॉलेज, मोनो टेक्निकल कॉलेज से होता हुआ लाखा रोड बरास्ता सियालाबाद जाता है। किसी दौर में ये चौक बहुत कुशादा हुआ करता था, मगर अब मुख्तलिफ अशियाए खुर्दोनोश की रेहड़ियों ने नाजायज़ तजावुज़ात की भरमार की हुई है, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर ट्रैफिक जैम रहता है और शहरियों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। कौमी शाहराह से कोटरी कबीर और हालानी की तरफ से शहर में दाखिल होने के लिए सबसे पहले यही चौक आएगा। साबिक चेयरमैन हाजी अब्दुल गफूर मुग़ल के दौर में ये गेट बाबे इल्म और बाबे फिरदौस तामीर किए गए। यहाँ से रेलवे स्टेशन और ठरी मीरवा के लिए एक सड़क जाती है। इस चौक को मेहराबपुर की मेन हैसियत हासिल है, क्योंकि सिटी और तालका की अक्सर ऑफिसें यहीं पर वाक़े हैं, जिनमें कोटरी रोड पर वापडा ऑफिस, मेहराबपुर सिटी लाइब्रेरी और हलानी रोड पर नई सब्जी मंडी, इसके अलावा हायर सेकेंडरी स्कूल, टाउन कमेटी, नादरा ऑफिस, असिस्टेंट कमिश्नर,
मुख्तियार कार ऑफिस, सरकारी अस्पताल, वेटरनरी अस्पताल और वाटर सप्लाई यहीं पर वाक़ है। इस चौक में ज़्यादातर लोहे का कारोबार है। पुराने मेहराबपुर शहर के हुसैनी चौक को तारीखी हैसियत हासिल है। मेहराबपुर जो कि आज हमको नज़र आ रहा है, ये नया शहर है। असल में पुराना शहर इसी हुसैनी चौक पर वाक़ था। पुराने शाही बाज़ार के आसार आज भी इसके नज़दीक मौजूद हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद पहली सब्ज़ी मंडी यहीं पर वाक़ थी। सन 1958 अयूब खान के दौर में यहाँ खौफनाक आग भड़क उठी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद तमाम दुकानें जलकर राख हो गई थीं। निज़ाम कंबो नामी एक शख्स झुलस कर हलाक हो गया था। बाद में सब्ज़ी मंडी इस जगह से मुंतकिल कर दी गई। शहर का पहला सरकारी अस्पताल सन 1964 में इसी चौक पर कायम किया गया, जिसमें उस वक्त के बड़े डॉक्टर सलीम सदीकी अपने फ़राइज़ को अंजाम देते रहे। क़याम पाकिस्तान से पहले इस जगह घनश्याम दास भगत करवाया करते थे, जो पाकिस्तान बनने के बाद भी काफ़ी अरसा तक होता रहा। इसमें मुल्क के नामवर गायक मास्टर चंदर भी तशरीफ़ ला चुके हैं, मगर घनश्याम दास की वफ़ात के बाद ये सिलसिला बंद हो गया। और उठाई रहने पर हो जन हयाती। इसी हुसैनी चौक में लाल शहबाज कलंदर की धमाल हर साल शोबान के महीने में होती है, जिसमें सिंध के बड़े गुलकार अपने फ़न का मुजाहरा कर चुके हैं। सैयद जाहिद हुसैन शाह भी 29 सफ़र को इसी जगह काफ़ी अरसे से मजलिस करवा रहे हैं, जिसमें मुल्क के मुमताज़ ज़ाकिर और उलमा मजलिस पढ़ चुके हैं। बड़े एजाज़ की बात यह है कि मौलाना उबैदुल्ला सिंधी के साथी कामरेड हाशिम घांगरो की रिहाइशगाह भी यहीं पर वाक़ है। इसी जगह पर कामरेड हाशिम गांगरो की बड़ी बेटी हमीदा गांगरो की शादी अपने वक्त के तरक्की पसंद तालिबे इल्म रहनुमा नज़ीर अब्बासी से अंजाम पाई थी। याद रहे कि जनरल ज़िया के दौर में नज़ीर अब्बासी को कराची केमाड़ी टार्चर सेल में तशद्दुद के ज़रिए शहीद कर दिया गया था। इस हुसैनी चौक में शहर के बड़े हकीम हाफिज़ इस्लामुल हक की हिकमत की दुकान भी थी। ये वो इस्लामुल हक हैं जिनका बेटा सिंध के साबिक गवर्नर हकीम सईद के साथ कराची में नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद हो गया था। यहाँ एक कदीमी मक्की मस्जिद भी मौजूद है। शहर में सबसे पहली पानी की सबील पीर मुरीद अली शाह के नाम से इसी चौक पर लगाई गई। चौक के शुमाल मशरकी हिस्से में चंद कदम के फासले पर हुसैन महल के नाम से मरकज़ी इमाम बारगाह अंजुमन नौजवानाने शिया वाक़े है, जिसका संगे बुनियाद मुल्क के बड़े स्कॉलर अल्लामा तालब जोहरी ने 7 अक्टूबर सन 2007 में रखा। इमाम बारगाह के अतराफ में चन्नों, काजियों और सुमरों के कब्रिस्तान भी हैं।
13 मई 1861 में जब रेलवे ने पाकिस्तान में अपना सफ़र शुरू किया तो मेहराबपुर के इस रेलवे स्टेशन का नामो निशान भी न था, क्योंकि पहले मरहले में कराची टू कोटरी 169 किलोमीटर तवील ट्रैक का आगाज़ किया गया। फिर 27 अक्टूबर 1878 को बरास्ता दादू लाड़काना कोटरी को सक्खर से मिला दिया गया और फिर 15 मई 1896 को रोड़ी से हैदराबाद ट्रैक का इफ्तिताह किया गया। इसके बाद मेहराबपुर के इस रेलवे स्टेशन का क़याम अमल में आया। मेहराबपुर से एक फीडर लाइन हालानी, कंडियारो, थारूशा, मिठियानी और नौशहरो फिरोज से होती हुई पडीदन, नवाबशाह और टंडो आदम से मेन रेलवे लाइन में जा मिलती है, जिसकी वजह से मेहराबपुर को जंक्शन का दर्जा मिला। मगर अब ये फीडर लाइन माजी के झरोकों में कहीं खो गई है। स्टेशन पर ठंडे पानी की सबील हो या शजरकारी या फिर दीगर ट्रेन हादसात, तो यहाँ की सियासी व समाजी शख्सियात के साथ साथ शहरियों की खिदमात भी काबिल कदर हैं। मरहूम इस्लामुद्दीन कम्बो और खादमे शहर मरहूम हाजी उमरदीन कम्बो के नाम भी काबिल ज़िक्र हैं। हरियाली और शजरकारी के हवाले से आजकल समाजी रहनुमा अब्दुल रज़ाक कम्बो और MB मेमन की काविशें भी काबिल तहसीन हैं। रोहड़ी और नवाबशाह के दरमियान रेलवे को सबसे ज़्यादा इनकम फराहम करने वाले इस स्टेशन को वो सहूलियात मैसर नहीं जो इसका हक बनता है। जहां आए दिन रेलवे के किरायों में इजाफे ने मुसाफिरों को परेशान कर दिया है, वहां पर ट्रेनों के लेट होने और स्टेशन पर सहूलतों के फुकदान ने मज़ीद बेजार किया हुआ है। प्लेटफार्म नंबर 2 मुकम्मल तौर पर तबाह है और लाइन के बिल्कुल बराबर हो चुका है, जिसकी वजह से बूढ़ों, बच्चों और ख़वातीन को गाड़ी में चढ़ने और उतरने में मुश्किलात दरपेश हैं। मुसाफिरों की आमदो रफ्त के हवाले से मज़ीद ट्रेनों के स्टाफ्स की ज़रूरत भी है। वज़ीर रेलवे, GM रेलवे, सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि वो तबाही के दहाने पर पहुँचे हुए मेहराबपुर रेलवे स्टेशन को बचाने के लिए फौरी इक़दामात करें। मेहराबपुर शहर दरमियान से रेलवे गुज़रने की वजह से 2 हिस्सों में तकसीम है, जिसकी वजह से मगरबी हिस्से को शहर और मशरकी हिस्से को न्यू टाउन या गरीबाबाद के अलावा और भी बहुत से नामों से पुकारा जाता है। शहर के दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए 2 रेलवे फाटक हैं, एक जुनूब की जानिब, दूसरा शुमाल की तरफ न्यू टाउन रोड वाला। सियालाबाद रोड वाले फाटक की निस्बत न्यू टाउन ठरी रोड वाला फाटक ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ट्रेन के आने और जाने से फाटक बार बार बंद होता है, जिसकी वजह से ख़वातीन, बूढ़ों और बच्चों को शदीद गर्मी में घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। शहरी गुज़िश्ता कई बरसों से ये मुतालबा कर रहे हैं कि न्यू टाउन वाले इस फाटक को ख़त्म करके यहाँ अंडरपास या ओवरहेड ब्रिज तामीर किया जाए, ताकि ये ट्रैफिक
बआसानी गुजर सके, मगर शहर के इस देरीना मसले पर मेहराबपुर के सियासी अफराद ने भी खामोशी इख्तियार कर रखी है। मुल्क में ज़िला नौशहर फिरोज़ को मेहराबपुर के हवाले से पहचाना जाता है। इसके अलावा मेहराबपुर शहरी आबादी के लिहाज से भी अपने ज़िले से काफ़ी बड़ा है। इस शहर पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। मेहराबपुर को तालके का दर्जा तो दे दिया गया, मगर तालका दर्जे की सहूलियात न मिल सकी। अब किस्सा मुख्तसर ये कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के मुख्तलिफ MNA, MPA, नाजिम और चेयरमैन आए, मगर वादों और दावों के बावजूद मेहराबपुर को वो मकाम न दे सके जिसका ये मुस्तहक था। नाजरीन, ये था हमारा मेहराबपुर डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा अव्वल। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हिस्सा दोयम आपकी नज़र किया जाएगा, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात, तालीम, तिब, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कराटे, सहाफ़त और शायरी के हवाले से नामवर शख्सियात के इंटरव्यूज़ होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।